Good morning, everyone. Welcome to all of you in the home mentoring session from DSD Vidya School. Myself, Ritu Mittal, mathematics teacher. Students, today we are going to start the next chapter, that is chapter number 6, application of derivatives. Before starting that, let me recap a little bit about the chapter number 5. In the chapter number 5, we had done the derivative of composite function, inverse trigonometric function, implicit function, exponential function and logarithm function. Now in this chapter, we will study the application of derivatives in various disciplines. And in this chapter we will work on some particular topics. So let me discuss this topic. The first topic is the rate of change. The first topic is determine the rate of change of the quantities. The second topic is to find the equation of tangent and normal to a curve at a point. Third topic is increasing and decreasing function. Fourth is approximation. And the fifth topic is maxima and the minima. Maxima and minima, it is a very important topic, so listen it very carefully. In fact, all the topics are very important, so be careful about this chapter. So let me start with the exercise 6.1. Now the first topic is a rate of change of quantities. In the rate of change of quantities, in general language, we can say that if we are changing any distance, like in the rate, we can say that the rate of change of distance with respect to time in this type of question, we can say that ds by dt. It means that if we are changing anything at particular time or particular dimension, then we can find out the derivative of that one function. Let's take an example. Now in the example number 1, you can see that find the rate of change of the area of circle with respect to its radius when radius is given 5 cm. So all of you know the area of circle, the formula is A is equal to pi r square. Now we have to find out the rate of change of the area with respect to radius. It means that we have to find out dA by dr. Now we have to differentiate the area, that is pi r square, that is 2 pi r. Now in place of r we have the radius 5 cm. So in place of r we will put down 5 cm, and that dA by dr, that will become 10 pi. Now what is the unit of dA by dr? That will be centimeter square per centimeter. As dA is the area, so its unit will be in a square, so centimeter square per centimeter. R is the radius, so we will write on per centimeter. Now let me come on the exercise 6.1. Now in the exercise 6.1, you can see the question number 1. Find the rate of change of the area of circle with respect to its radius r when the r is 3 cm and the r is 4 cm. So let me do with the question. So all of you know the area of circle is pi r square. So here we have to find out dA by dr, and the formula is pi r square. So let me differentiate it with respect to r. So pi 2r. So after differentiating it, we get the 2 pi r. In the first part, the radius is given 3 cm. So in place of r, we will put down 3 cm. So it will become 6 pi centimeter square. I hope that all of you get clear. Very simple and very easy questions are these. Now let me move to the question number 4. In the question number 4, an edge of variable cube is increasing at the rate of 3 cm per second. How fast is the volume of cube increasing when the edge is 10 cm long? So here it is given about the cube, and there is a given the variable of cube is increasing at the rate of 3 cm per second. It means that dx by dt is given 3 cm per second, and we have to find out the rate at which and we have to find out how fast is the volume of cube increasing. That means we have to find out dv by dt when there is a dimension is given that is equal to 10 cm. So let me start with the question. This is the volume of cube. The volume of cube is x cube, and we have to find out the rate of change in the volume of cube with respect to time. So we have to find out dv by dt. So यहाँ पे हमने क्या किया, वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर हम यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को भी हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. सो दिस इज़ बिकम 3x स्क्वायर dx बाय dt. अब हमने dv बाई dt यहाँ एज इट इज़ रख दिया. x की वैल्यू हमारे पास है, dx बाई dt की वैल्यू हमारे पास है. x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, dx बाई dt 3.
सिंपल काम किया हमने, वैल्यूज़ को हमने सिंपल पुट कर दिया और कुछ नहीं किया. सो दैट वी हैव टू डू. नाउ लेट वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 नाउ. In the question number 7, now listen it carefully. The length x of a rectangle is decreasing. Decreasing जब भी वर्ड आएगा तो दैट मीन्स नेगेटिव साइन साथ में आएगा. तो अगर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, वो डिक्रीज़ हो रही है, तो दैट मीन्स dx/dt दिया हुआ है, दैट इज़ इक्वल टू -5. एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल होगा इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर. इंक्रीज़ कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा. And x is 8 centimeter, y is 6 centimeter. Find the rate of change of A, the perimeter, and B, the area of rectangle. इसमें दो पार्ट हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं. So let we do it. ओके, जो हमें पहले गिवन है हमने उसको लिख लिया. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, दैट इज़ 2xy. एरिया क्या होता है हमारे पास, x इंटू वाई. dx/dt मैंने आपको बताया माइनस साइन लेंगे, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. dy/dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2xy. हमें dp/dt निकालना है, तो हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ द साइड्स. नाउ x will become dx/dt plus y become dy/dt. So in place of dx/dt we can write down -5. In place of dy/dt we can write down 4. And after solving it we get that -2 सेंटीमीटर पर मिनट. यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट अगर आपने नहीं लगाई आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. सो बी केयरफुल अबाउट द यूनिट. नाउ इन द सेकेंड पार्ट देर इज़ अ गिवन a इज़ इक्वल टू XY. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने अप्लाई किया, तो dA/dt कितना हो गया हमारा, x dy/dt प्लस y dx/dt. डिफ्रेंशिएट किया, इसमें प्रोडक्ट रूल लग गया. ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस. तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी सिंपल और वैल्यू आ गई हमारे पास. तो इन दिस वे वी हैव टू डू दिस. लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 8 नाउ. Now in the question number 8, the question is that a balloon which always remain spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. यहाँ बलून की बात करें तो बलून मतलब एक स्फेरिकल बलून दिया हुआ है, और स्फेरिकल बलून के साथ हमें क्या दिया हुआ है, जो उसका वॉल्यूम है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं दैट इज़ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. रेडियस हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द चेंजेस इन द रेडियस. तो dr/dt हमें फाइंड आउट करना है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया स्फेयर के 4/3 πr3. dv/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्योंकि वो हमें गिवन है, सो 4/3 पाई 3r² dr/dt. सिंपल हमने काम किया, उसके बाद जस्ट कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ पुट करी एंड सिंप्लीफाई किया एंड वी कैन फाइंड आउट द आंसर. ईजी है बिल्कुल सिंपल, एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो यू कैन ईजिली डू इट. लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 10 नाउ. Now in the question number 10, the question 10 is that a ladder 5 centimeter long is lying against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको करें. तो आई जस्ट एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. क्वेश्चन में बोला है कि एक लेडर है जो कि हमारी एक वॉल के अगेंस्ट है. तो ये हमारी वॉल है, उसके साथ ऐसे लेडर रखी हुई है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है. ठीक है, हमने क्या किया, जो लेडर की बॉटम है उसको पुल किया ग्राउंड में, तो क्या होगा, लेडर थोड़ी सी नीचे आ जाएगी शिफ्ट होके, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, थोड़ा सा कम हो जाएगी. तो वी हैव टू फाइंड आउट कि जो हमने पुल किया उसको, तो वो किया विद रिस्पेक्ट टू वॉल दैट इज़ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. Now we have to find out how fast is its height on the wall decreasing. अब क्या होगा, जब हमने इसको इधर खींचेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगी, तो कितनी उससे इसकी हाइट में डिक्रीज़ हो रहा है वो हमें बताना है. When the foot of the ladder is 4 meter away from the wall, this we have to find. तो चलिए ये क्या हो गया, हमारा एक राइट ट्रायंगल हो गया. तो हमने इसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, 5² = x² + y². ठीक है, हमें dx/dt जो हमने पुल किया है वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यूनिट का ध्यान रखना, 5 मीटर ये सेंटीमीटर है, इसको भी हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, 0.02 मीटर पर सेकेंड.
डी वाई बाई डी टी वी हैव टू फाइंड आउट। एक्स हमें दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम को लगा के पहले यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, y इज इक्वल टू 3 मीटर, हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये तो सब इजीली कर लेंगे। अब हमें जो मेन काम करना है डी वाई बाई डी टी वी हैव टू फाइंड आउट। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमें टाइम के रिस्पेक्ट में ही उन्होंने पूछा है, तो हमने टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या हो गया, सॉरी एक्स स्क्वायर का हो गया 2x डी एक्स बाई डी टी, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी टी। सारी बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखी हमने, वैल्यू रखने के बाद डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारी आएगी 0.08/3 मीटर पर सेकेंड। मैंने उसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, दैट बिकम 8/3। तो इन दिस वे वी कैन डू इट। लेट वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 12 now let we come on the question number 12. The radius of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of bubble increasing when the radius is 1 centimeter? Now this is the question. Let me start with the solution. dr by dt is equal to 1/2 centimeter per second. dv by dt हमें find out करना है। रेडियस हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। सिंपल जो सेम काम हम बार बार कर रहे हैं, वैल्यूज़ पुट करके वी हैव टू फाइंड आउट डी वी बाई डी टी की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है, सेम ही कॉन्सेप्ट बेटा बार बार यूज़ हो रहा है, इजी है, ध्यान से बस फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए 10th क्लास के, उसके अलावा और कुछ भी नया नहीं है। नाउ लेट वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14 Now in the question number 14, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. पाइप क्या हो गया, एक सिलेंडर, उसका वॉल्यूम हमें डी वी बाई डी टी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज़ ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है हाइट में और रेडियस में। कोन की, ये ध्यान रखना, ये कोन के उसमें दिया हुआ है, हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। नाउ लेट वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन h कोन की हाइट दी हुई है, रेडियस का r/6, तो r की वैल्यू हमने निकाल ली 6h। अब ये dv बाई dt दिया हुआ है सिलेंडर का वॉल्यूम। अगर हम सिलेंडर में से उसी सेम वॉल्यूम का हमने कोन बनाया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि सेम ही सैंड हमने यूज़ करी है, तो ये किसका हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा कोन का भी सेम हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट dh बाई dt। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो लेट वी स्टार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह हमने क्या किया, एच की वैल्यू रख दी, क्योंकि हमें एच का आंसर चाहिए था, तो ए की रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ईजी रहेगा। तो हमने एच आर को कन्वर्ट कर दिया 6h का होल स्क्वायर। बस आगे कुछ नहीं करना है, यह हमारे पास वैल्यू आ गई। डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग इट वी गेट दिस वन। वैल्यूज़ हमारे पास सारी हैं, हमने वैल्यूज़ पुट करी एंड वी गेट 1/3 पाई एच स्क्वायर। सो इन दिस वे वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। एच की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो ये आपके लिए मैंने छोड़ा, इसे आप पुट करेंगे एंड यू कैन फाइंड इट आउट। आई होप दैट all of you get clear this exercise. Thank you student and have a nice day.